हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक ही होंगे। नाउ टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर नंबर 3। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वह स्टैंडर्ड 5 डीएपी पब्लिक स्कूल सभी बच्चे के लिए है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 का पूरा जो है प्रैक्टिकली करके दिखाया था। आज मैं बात करूँगा इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3, हैंड्स ऑन, मोर ऑपरेशंस इन राइटर। More operations in writer, and people are knowing writer is what, एक application software है जो open office PC suite का है। What the things you will learn in this chapter, children? In this chapter you will learn a different various formatting options available in writer। राइटर में क्या क्या फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आई विल डिस्कस टुडे, एंड हाउ यू कैन यूज दीज टूल्स। सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। There is one story, children, you can see. Once upon a time there was a teach savvy girl, Alice. She was keen on learning the computer software writer. One day she was sitting with her laptop under the tree in a garden in front of her house. She opened the writer program and started wondering about how to use it. Cool and lovely breeze was blowing. Soon she left sleepy and learned over the laptop and was almost asleep. So she found herself in the writer land where she met a dwarf. She was curious to know what he was doing there. She went to him and asked, "Who are you?" He replied, "I am Mr. Align of Writerland and I am used for text alignment. So my role is to set a placement of text horizontally within the document." So now children, this is what one is just amazing, और यू कैन सी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो एक बच्ची जो है वो लैपटॉप में राइटर के बारे में स्टडी कर रही थी और वह सो गई, और उसके बाद वह राइटर की दुनिया में चली गई और क्या देख रही है, अलाइनमेंट के बारे में। सो वाई दिस स्टोरी इज गिवन, so that you can understand the concept and what the topic I'm going to explain right now. This is what alignment. Alignment, what is alignment, children? So you can see, you must write in the copy also, what is alignment. Alignment refers to the horizontal positioning of text in the document related to margin. इसको यदि सिंपल सा बात करें चिल्ड्रन, तो आप डॉक्यूमेंट में या कंप्यूटर में आप कुछ भी टाइप करते हो तो उसका प्लेसमेंट क्या होगा, दैट विल बी displayed from left side, or you want to display from right side, or you want to display from center side. So that is called alignment, children. So I'm going to show you कैसे alignment यूज करेंगे आप। Suppose if I'm writing we love our country. Now children, you have seen जो भी लिख रहे हैं वो क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट हो रहा है, एंड राइट नाउ जो लाइन है वो लेफ्ट साइड से है, बट यू वांट टू प्लेस this line in center position. So this is the working area, children. So left side, we love our country, but I want to place this in center. So what we have to do, see, this is the formatting toolbar, children, and if you click this one, so this line will be moved in center position. If you want to display this line in right side, then you have to click this right side. So you can see, children, placement, और दिस इज़ व्हाट हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं आप, तो दिस इज़ द अलाइनमेंट। सो हाउ यू कैन यूज दिस वन। देखिए चिल्ड्रन, अभी ये राइट साइड में है, आप यदि इसको लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे CTRL+L, तो ये हमारा राइट साइड में, दिस इज द शॉर्टकट की। क्या शॉर्टकट की है, CTRL+L, ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट हो गया।
लेफ्ट लेफ्ट अलाइनमेंट चिल्ड्रन। एंड यदि इसे सेंटर में, अब देखिए शॉर्टकट कहाँ से देखेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं लाइन लेफ्ट shortcut key is given ctr plus l. If you move this one ctr plus e, this is what center alignment, and this is right alignment children. तो same way हम ctrl plus r करते हैं, this is the shortcut key for right alignment children. आप कॉपी में लिख लेंगे ctrl प्लस ई हमारा जो है वह किसके लिए चिल्ड्रन, सेंटर अलाइनमेंट का। देखिए मूव करेंगे आप यहाँ पर, देखिए सेंटर्ड अलाइनमेंट, तो आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट। सो सी टी आर प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट साइड टेक्स्ट को प्लेस करना, और यू वांट टू टाइप फ्रॉम लेफ्ट साइड। सी टी आर प्लस आर राइट अलाइनमेंट, इफ यू वांट टू प्लेस द टेक्स्ट फ्रॉम राइट साइड, if you want to place the test center the ctl plus e. so इसकी अलाइनमेंट के बारे में ही बात किया जा रहा है, एंड हाउ यू कैन ओपन दिस ऑप्शन चिल्ड्रन, फ्रॉम वे यू विल गेट फॉर्मेट मेन्यू अलाइनमेंट एंड देन लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई। तो देखिए यहाँ पर अभी तो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार है, तो ऑल द थिंग्स आर हियर, बट फॉर्मेट में जाएंगे, मेन्यू बार में फॉर्मेट में, एंड यू कैन सी चिल्ड्रन अलाइनमेंट, एंड कितने सारा अलाइनमेंट है, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई चिल्ड्रन। तो अब अभी यहाँ अलाइनमेंट मैंने बात किया, कितने अलाइनमेंट है, 1 2 3। नेक्स्ट जो एक अलाइनमेंट है सी टी आर एल प्लस जी, दिस इज कॉल्ड जस्टिफाई अलाइनमेंट चिल्ड्रन, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है चिल्ड्रन, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको देखिए यहाँ आइकन दिख रहा था, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई। कौन से टूल बार में, कौन सा मेन्यू बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार कौन सा है चिल्ड्रन, यू कैन सी दिस इज द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो अलाइनमेंट समझ में आ गया चिल्ड्रन, लेफ्ट साइड टेक्स्ट को प्लेस करना लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट साइड अलाइनमेंट को प्लेस करना राइट अलाइनमेंट, सेंटर में सेंटर अलाइनमेंट, और जस्टिफाई आई विल शो यू। So you can see these icons I have shown, this is the left alignment, center alignment, right alignment and justify alignment. So look here children, do you know there are certain scripts which are written from right to left. yes, जो बच्चे या जो बात करें जो उर्दू जानते हैं या अरेबिक जो स्क्रिप्ट होता है वो राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, और हम लोग बाकी जितना लिखते हुआ क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मीन्स यू आर नोइंग, जैसे इफ एम राइटिंग वी आर इंडियन, तो वी आर राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना। सो नाउ चिल्ड्रन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द फर्स्ट अलाइनमेंट यू मस्ट राइट द डेफिनेशन ऑल्सो इन द कॉपी। लेफ्ट अलाइनमेंट, दिस सेटिंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज लेफ्ट जस्टिफाइड, इट इज डिफॉल्ट सेटिंग। यस, इफ द क्वेश्चन विल आस्क डिफॉल्ट सेटिंग क्या होता है अलाइनमेंट का, तो व्हाट द आंसर यू मस्ट गिव इन द कमेंट बॉक्स चिल्ड्रन। सो डिफॉल्ट सेटिंग is a left alignment. When you create a new document, left aligned text begin each line along the left margin of the document. तो चलिए चिल्ड्रन बात करते हैं, कुछ भी आप इंटरप्रेस करके या कुछ भी करते हैं तो लेफ्ट साइड से, दिस इज द लेफ्ट मार्जिन चिल्ड्रन, दिस इज द टॉप मार्जिन चिल्ड्रन, एंड दिस इज व्हाट राइट मार्जिन चिल्ड्रन। तो लेफ्ट मार्जिन से जो भी हमारा स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट अलाइनमेंट चिल्ड्रन। तो आप इसका डेफिनेशन कॉपी में लिखेंगे चिल्ड्रन। व्हाट इज द राइट अलाइनमेंट, शॉर्टकट की CTR प्लस एल। राइट अलाइनमेंट, दिस सेटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड राइट जस्टिफाइड, बट इट्स टेक्निकली नोन एज प्लस राइट। व्हाट इज द नेक्स्ट, or what is the new name for right alignment or another name of right alignment, plus right. It aligns the beginning of each line of text along the right margin from the document. And if you want to type from right side children, look, अभी हम जो भी लिख रहे हैं, आई एम इंडियन, यू कैन सी लेफ्ट से राइट गया, बिकॉज डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है, बट आई वांट टू राइट दिस लाइन फ्रॉम राइट साइड। तो व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन द राइट अलाइनमेंट एंड देन राइट आई लव माई कंट्री। यू कैन सी राइट साइड से जा रहा है चिल्ड्रन। And if you want to write from the center, what you have to do, you can click in center alignment or you can press CTRL plus E, then write Indian. So left
right center. This is clear to everyone, children. Now moving to the next part, children. One activity is here, children. Find out the name of some language which are written in Arabic script. Find out at least two more scripts which are written in right to left. You need to search this one. This you have to search and then you have to write. I'm not going to explain. The next alignment is center alignment, children. Center alignment I have discussed right now. Whatever things you want to write from the center, this is called the center alignment. So you can see यहाँ पर आप देख रहे हैं, this is the center alignment. You can see क्योंकि ये center से है, this is also center alignment, this is also center alignment. One question is there, you must do in the book, children. Observe the poem carefully. Do you find any similarity in their alignment? What is the similarities? This is written in what? This is written in what? Center alignment. This is also written in center alignment. This is also written in center alignment. Yes. Find out the name at least two poems from your English or Hindi textbooks which are centered alignment. यहाँ पर आंसर क्या करना है? Yes. और क्या है यहाँ? All three poems are written in centered alignment. And you need to find poems either in English book or Hindi book. So you have to write the name of the poems which are written in the center alignment, children. Now the next one is very important, justify alignment, and then I will show you practically also. Right now I have not discussed. So justified alignment, justified text combines left and right aligned text. Left को भी ध्यान रखता है और right को भी ध्यान रखता है. When a block of text is justified, each line fills the entire space from left to right, adjusting the space between words and character in each line so that the text fills 100% of the space. So अब दिखाते हैं justify alignment. Suppose अभी क्या करते हैं चिल्ड्रन, जस्टिफाई अलाइनमेंट को दिखाते हैं. अभी हम लेफ़्ट साइड से चले गए और कुछ लाइंस हम चाहते हैं. आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपिंग फ्रॉम समवेयर सो दैट कि आई yes children, I have copied some text from other documents and now I'm going to paste here. See children, there is one story, okay, and it's what justified already, and I'm going to explain how this is called justified alignment. Now children, see, in this is a story. Now what is the name of this story, children? The rich lady and the artist. You can see the rich lady and artist is in written from left side. If you want to align in center, what you have to do, select this one and click on the center alignment. See, this is the left alignment, but if you see the story of this, so right side a space is not managed. A space is not managed. Somewhere a space are left. So if you want to manage the space from right side also, so what you have to do, select the content and then use the justify. ध्यान से देखेंगे children. Now click this one. Now see, left side no space, right side no space. This is called justify alignment, and the shortcut key of this justify alignment is, children, CTRL plus G. I have written here. You can see CTRL plus G. So now moving to the next part. You can see there is example one. This is the left alignment, children. This is center. I have shown already. This is right alignment, children, and this is justify alignment. Now फिर उसी स्टोरी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. Now there is one hands-on, children. Just read carefully. She was asked to do the thing. Center alignment. The title. This you have to do. On the next line, write the subheading as, and just you have to read and do all the things. Now one question is there, children. He also asked allies to find out the shortcut key used in writer. So what is the shortcut key of left alignment, children? You must write this here and you must inform to me also through the comment box. Right alignment, center alignment, justify alignment. So I hope this alignment is clear to everyone, children. Now this is one activity, and if art teacher will come in your class, then sir will do this activity. Now bullets and numbering, the next topic that, children, I'm going to explain bullets and numbering. I hope you people are knowing this thing, bullets and numbering. So you must write this thing also in your copy.
bullets and numbering are used to emphasize emphasizes list of things and make it easier to read and follow. They help in presenting the data in an organized manner. Means कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज वे में दिखाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आपको बुलेट्स और नंबरिंग यूज करना पड़ता है. एक एग्जांपल यदि अच्छा मैं दिखाऊंगा कैसे बुलेट्स एंड नंबरिंग लाएंगे चिल्ड्रन. आप फॉर्मेट मेन्यू में जाकर बुलेट एंड नंबरिंग में आपको क्लिक करना है. सो अभी मैं इसमें जा रहा हूँ और मैं इस स्टोरी के लास्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू में गए एंड यू कैन सी बुलेट्स एंड नंबरिंग है, यहाँ बुलेट्स एंड नंबरिंग में आ गए. अब what डायलॉग बॉक्स विल बी appeared जब आप फॉर्मेट मेन्यू में जाकर बुलेट एंड नंबरिंग में जाएंगे तो दिस इज द डायलॉग बॉक्स ऑफ बुलेट्स एंड नंबरिंग. ए बुलेट सेलेक्ट है विच स्टाइल यू वांट चिल्ड्रन. दीज आर द different स्टाइल यू कैन यूज. क्लिक हियर एंड प्रेस ओके. नाउ इफ आई एम राइटिंग झारखंड, नेक्स्ट बिहार, next UP, next MP. Now look children, this is what bullets and all the things are organized way. If you want to change this one children, so what you have to do, click once again format menu and just click bullets and numbering. These are the styles. If you want to use this one, click this one and press OK. It will be changed. Another, if you want to change, then again go to this one bullets and numbering and just choose whatever the styles are here, press OK. But you want something new, so what you have to do children, go to bullets and numbering, then click on the graphics, choose. There are different graphics, which one you like most. I think if you want this one, click and just press OK. So this is about the bullets. Now moving to the next one children, numbering is just like same as the bullet, but bullet the things are not in a specific order, not in particular order, but you want to arrange the things in particular means you have to follow what either in ascending or descending order. So here numbering जो है वो आपका ascending होता है. Click on this if you want to use this one like A B C D 1 2 3. Click here and press OK. So you can see children, this is what bullets and numbering. So see in this PDF what is bullets and what is numbering, it's given here. I have shown this one also children. बुलेट नंबर और एक और होता है जिसको बोलते हैं आउटलाइन, मीन्स दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. अब आते हैं फर्स्ट बुलेट लिस्ट क्या होता है. चलिए आप कॉपी में लिख लेंगे. बुलेटेड लिस्ट कंटेन अ बुलेट दैट रेफर्स टू द सिम्बॉल्स दैट कैन बी प्लेस्ड बिफोर द लिस्ट आइटम. अब यहाँ पर देखेंगे चिल्ड्रन लिस्ट आइटम क्या था हमारा झारखंड, और अभी हमारा जो है वह बुलेट में ले लेते हैं. देखिए झारखंड से पहले हमारा क्या हुआ, सिम्बॉल्स यूज हुआ. सो दिस इज कॉल्ड द बुलेट्स. मूविंग द नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रन, कैसे यूज करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर. नंबरिंग आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज नंबर. और नंबर लिस्ट इज वन विच हैज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. सीक्वेंस मीन्स इन अ सेंडिंग ऑर्डर. द डिफॉल्ट नंबरिंग इज 1 2 3. कैसे करेंगे चिल्ड्रन तो बता चुके हैं, इसको आप कर सकते हैं, इसके बारे में बता चुके हैं चिल्ड्रन. नया डिफाइन करने के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं. नेक्स्ट आउटलाइन और नेस्टेड लिस्ट. आउटलाइन और नेस्टेड लिस्ट कैसे करते हैं तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. आउटलाइन और नेस्टेड लिस्ट. तो आप फिर से देखिए ये हमारा बुलेट एंड नंबरिंग का टूल बार है. आप बेटर होगा आप यहाँ से क्लिक करें. देखिए नंबरिंग है, आउटलाइन. दिस इज़ व्हाट नेस्टेड लिस्ट. किस तरह का नेस्टेड लिस्ट चाहिए आपको, यू कैन चूज़ फ्रॉम हियर ऑल्सो. इफ़ यू वांट टू चूज़ दिस वन तो यू कैन. आप जो भी आइटम लिखेंगे आप वो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रन. टू टाइप द लिस्ट आइटम, दिस इज एक्टिविटी, यू हैव टू डू दिस वन. इस तरह से अरेंज होना चाहिए. नोट, you can open bullets and numbering dialog box from format menu also that I have shown to you people. This is what formats में आप वहाँ से ला सकते हैं.
बुलेट ऑन ऑफ कर सकते हैं चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर ना बुलेट्स को हम लोग ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर बुलेट्स ऑन ऑफ है, यहाँ पर ऑन करेंगे तो ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, इस तरह से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं चिल्ड्रन। नेक्स्ट आई एम मूविंग। One hands-on is given children. Mr. Bully asked Elias to open the document. Hands-on, type, practice bullet and numbering at the center and do the following. This you have to do. Next I'm moving to the children. A special characters. Yes, a special characters. How you can insert the special characters means some characters जो कि आप यूज करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो कैसे करेंगे। व्हाट इज स्पेशल कैरेक्टर्स, तो यू कैन राइट इन द कॉपी ऑल्सो। और स्पेशल कैरेक्टर इज नॉट फाउंड ऑन द स्टैंडर्ड इंग्लिश कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड में वो सिम्बल्स नहीं मिल रहा है, तो स्पेशल कैरेक्टर्स आर दोज दैट फॉल आउटसाइड द बेसिक अल्फ़ाबेट्स, जो कुछ अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन होता है ऑफ द लैंग्वेजेस एंड कैन इंक्लूड सिम्बॉल्स। जैसे लेस देन साइन, इस साइन आप देख रहे हैं, इस सारी चीज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हाउ यू कैन। सो व्हाट यू हैव टू डू चिल्ड्रन, click on the insert menu, you can see insert menu, then see a special characters, click on it, and these are the different symbols children. What symbols you want to use, what the characters you want to use, you can use children different. If you want to use this one, click here and press OK. You can see a symbol aa gaya. Same way you can use different. Once again I'm going to show you insert a special characters and from clicking on this you can use. देख रहे हैं बच्चे आप लोग, यहाँ पर आ रहा है। अब आया कि देखिए यहाँ पर कुछ और बता दें। यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स में देखिए यहाँ बेसिक ग्रीक में आ रहा है। अब यहाँ से सबसेट में डिफरेंट अरेबिक सिम्बॉल्स आप लेना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक हियर एंड प्रेस ओके। और आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से आप साइज़ को आप क्या कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहेंगे आप उतना ले सकते हैं। नाउ मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, इट्स अ गिवन हाउ वी कैन इंसर्ट दिस, आई हैव शोन टू यू ऑल्सो। एक्टिविटी इज गिवन, यू कैन फाइंड मी ऑन इंडियन करेंसी, तो सिंबल फाइंड करना है। कौन सा होगा, रुपीज़ का सिम्बॉल्स पता है बच्चे, आप इसको लिखेंगे यहाँ पर। कैसा रुपीज़ का सिम्बॉल्स होता है याद है, ऐसे लिखा हुआ होता है और ऐसे किया हुआ होता है, लाइन खींचा हुआ होता है। नेक्स्ट, आई एम यूज टू एक्सप्रेस हैप्पी मूड, अ स्माइली यू हैव टू यूज, यू कैन यूज मी टू प्रोवाइड अ लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कॉपीराइट इशूज, सो यू नीड टू सर्च दैट वन एंड ड्रॉ विथ pencil also. So this activity you must do, you need to search from the computer network or internet and then use here. Now use of shift key, कीबोर्ड में शिफ्ट की देखिए बच्चे, शिफ्ट की क्या होता है, व्हाट इज शिफ्ट की। तो शिफ्ट की इज अ स्पेशल की ऑन द कीबोर्ड, बाय प्रेसिंग द शिफ्ट की एंड नंबर की टुगेदर यू कैन इंसर्ट द असेंटेड लेटर्स इन द डॉक्यूमेंट। आप बहुत सारे कीज़ होते हैं जो कि आप चाहते हैं इसको यूज करने के लिए, तो आपको शिफ्ट की के साथ यूज करना पड़ेगा। एक हैंड्स ऑन दिया हुआ है चिल्ड्रन, आप इसको यूज करेंगे। जैसे अभी हम बात करें एक हैंड्स ऑन एस का यूज करना चाहते हैं, कैसे यूज करेंगे तो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। क्या करेंगे हम, शिफ्ट के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड द रेट है सर, देखिए यहाँ पर क्या है, स्टार है, तो हमें ये स्टार यूज करना पड़ेगा। तो शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और न्यूमेरिक की में 8 प्रेस करेंगे, 1 2, देन लिखा हुआ है स्पेशल, यू नीड टू टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड स्पेशल एंड देन स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे चिल्ड्रन, शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे एंड 9 को प्रेस करेंगे एंड व्हाट इज रिटन हियर स्लैश, शिफ्ट बटन यूज करेंगे एंड देन दिस इज द स्लैश। Next one children, then underscore, shift button and underscore. Next one, then forward slash. Next one, a small bracket children. तो देखिए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जो यहाँ दिया हुआ था वो आप किया हुआ है, तो इसी तरह से आप नेक्स्ट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट बनाएंगे, कोशिश करेंगे आप और आपको समझ में आ जाएगा। इट्स अ वेरी इजी टास्क, आप प्रैक्टिस करें, नहीं होगा देन आई विल show you in the computer lab also. Now moving to the next part children. Next one is header and footers. Header and footers क्या होता है बच्चे, इसको कॉपी में लिख लेंगे आप।
and I will show you practically also. Headers are the portions of a document that always appear at the top of the page, whereas footers appears at the bottom of द पेज. आप देख रहे होंगे चिल्ड्रन, पेज के नीचे जो है ना बॉटम में हमें दिख रहा है पेज नंबर, दिस इज़ कॉल्ड फूटर चिल्ड्रन. एंड पेज के ऊपर जो है ना आपका हेडिंग वगैरह दिया रहता है या टाइटल दिया हुआ होता है, दिस इज़ कॉल्ड द फूटर. तो कैसे हम लोग यूज करेंगे तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं चिल्ड्रन. हेडर फोटोज का डेफिनेशन लिख लेंगे आप. कैसे यूज करेंगे चिल्ड्रन, टू इंसर्ट अ हेडर. हेडर को इंसर्ट करने के क्या करेंगे, क्लिक इन द इंसर्ट मेन्यू एंड गो टू द हेडर ऑप्शन. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इससे बाहर निकलते हैं, क्लिक ऑन द इंसर्ट देन गो टू हेडर ऑप्शन. देखिए हेडर ऑप्शन कहाँ दिख रहा है चिल्ड्रन, हेडर एंड क्लिक डिफॉल्ट. अब यहाँ पर हम हेडर में क्या देते हैं, हम अपना नाम देते हैं बच्चे. सपोज हम अपना नाम दिए तो अब सभी में जितने भी हम लिखेंगे ना, सभी पेज में हमारा जो है ना कुछ भी लिखते हैं हम यहाँ पर, तो सभी पेज में हमारा देखेंगे चिल्ड्रन, सेकेंड पेज में देखिए टॉप में हमारा अम्बलेस दिखेगा. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, हेडर. आप कहीं भी देखेंगे जब भी नया भी पेज स्टार्ट होगा, अभी पेज नंबर 2 में है तो दिख रहा है. यदि हम पेज नंबर 3 में जाएंगे चिल्ड्रन तो वहाँ भी आप देखेंगे अम्बलेस जो है वह दिखेगा आपका. देखिए यहाँ पर दिस वन. अब बात करते हैं हम फूटर पर. फूटर को कैसे इंसर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर हेडर के बारे में दिया हुआ है, अब फूटर इंसर्ट करना है. तो सेम वे आई विल गो क्लिक इन द इंसर्ट बटन, देन फाइंड करें कहाँ फूटर है. हेडर लिखा हुआ चिल्ड्रन, फूटर लिखा हुआ, डिफ़ॉल्ट कर दिया यहाँ पर. अब डिफ़ॉल्ट में मान के चलो कि हम पेज नंबर डाल देते हैं. तो हाउ वी कैन इंसर्ट द पेज नंबर चिल्ड्रन, इंसर्ट में जाएंगे और देखिए यहाँ पर कहीं भी आप पेज नंबर वगैरह आप देख सकते हैं, बुक मार्क देख सकते हैं यहाँ पर. तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा. आई वांट कुछ पिक्चर्स को इंसर्ट कर दें यहाँ पर एज अ फूटर. तो मेरे पास पिक्चर्स में आई थिंक डाउनलोड में कोई ना कोई पिक्चर्स होगा चिल्ड्रन, तो हम इस पिक्चर को डाल देंगे. तो देखिए सारे भी ना जितने भी पिक्चर्स होंगे ना उसके फूटर में, या इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा ताकि थोड़ा विजिबल हो पाए सभी के लिए. देखिए ना चिल्ड्रन ना पिक्चर्स में सभी पेज में, नॉट ओनली इन दिस पेज, जितने भी पेज होंगे मेरे पास सभी पेज में देखिए पिक्चर्स दिख रहे होंगे. तो यू कैन इंसर्ट दिस वन एंड बेसिकली फूटर वी आर यूजिंग टू जस्ट गिव द पेज नंबर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रन. कैसे दे सकते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट जो है चिल्ड्रन हम लोग ना फील्ड्स कैसे इंसर्ट करते हैं. अभी तो हेडर फुटर का बात की. देखिए चिल्ड्रन इंसर्ट में जाएंगे, फील्ड्स में जाएंगे आप ना. देखिए फील्ड्स में आप देखिए कहीं फील्ड्स दिखाई दे रहा है कि आपका फील्ड्स में क्या है, डेट एंड टाइम है, पेज नंबर है. पेज नंबर देना चाहते हैं आप, पेज नंबर डाल दो. अभी हमारा जो है वह पेज नंबर दिखेगा. कहाँ पर देना चाहते हैं आप, सपोज़ यहाँ पर जो इंडिया लिखा हुआ है यहाँ हटाकर हम यहाँ पर डेट दिखा देना चाहते हैं. इंसर्ट जाओ, फील्ड्स में जाओ और आज का अभी का टाइम, तो हमारा टाइम जो घड़ी में हो रहा होगा आप देख रहे होंगे 5:31 दे रहा, 5:31 यहाँ इंसर्ट हो गया चिल्ड्रन. तो फील्ड्स में देखें क्या क्या ऑप्शंस. फील्ड्स में हम डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, टाइम डाल सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं, पेज काउंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट डाल सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं, ऑथर में मान के चलो कि ऑथर हम हैं तो ऑथर का नाम दे सकते हैं यहाँ पर. तो इस तरह से आप डाल सकते हैं बच्चे. नाउ मूव कर रहे हैं नेक्स्ट, पेज नंबर. आई हैव शोन यू पीपल कैसे चिल्ड्रन कैसे पेज नंबर डालते हैं. और वन हैंड्स ऑन इज गिवन, ओपन द प्रीवियस डॉक्यूमेंट, गिव द हेडर डालना है, डेट एंड टाइम डालना है, इसे आप करेंगे. नेक्स्ट वन इज असेसमेंट एक्टिविटी चिल्ड्रन, इसको आप लोग करते हैं. वर्ड सर्च पजल है. फर्स्ट जो बोल रहा है, इट्स द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन राइटर. यू नीड टू सर्च डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ राइटर इज व्हाट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट. तो आंसर यू पीपल आर नोइंग लेफ्ट अलाइनमेंट. नाउ सी कहाँ लेफ्ट दिख रहा है आपको वर्ड सर्च करना है, लेफ्ट कहीं दिख रहा है क्या आपको फाइंड करना है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर घेरा लगाना है, आप इसको बनाना. देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, अलाइनमेंट, देन
नंबर, जस्टिफाइड, लेफ्ट कहीं लिखा हुआ होगा, देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट, बुलेट्स, बट यू नीड टू डू दिस वन इन द बुक विदाउट जस्ट वॉचिंग दिस, विदाउट आप सॉल्यूशन देखे हुए आपको क्या करना है चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको बनाना है और ये बुक में आप बना लेंगे आप. So I hope chapter number 3 is clear to everyone children. Watch this one carefully, and if you have any question, any doubt, you write in the comment box. And just hoping after watching this video all the things will be clear to you people. So thank you very much for watching this video.